At SDIET, our endeavor is that students who is here today in the meeting room becomes the best possible version of yourself and thrives in your study and in life at large. So during the orientation program, we are trying to build your solid foundation through all previous classes. So we brought home the fact कि लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए कुछ फंडामेंटल बिहेवियर पैटर्न्स हैं, कुछ फंडामेंटल स्किल्स हैं जो कि जिनको कि हम गुड थिंकिंग, गुड पर्सनालिटी, गुड एथिक्स इनके नाम से जानते हैं. तो इसलिए जो हमारी मोटिवेशनल टॉक्स की सीरीज है ऑन वेडनेसडेज, उसमें आज एक मास्टर क्लास होगी जिसमें कि आपको इन सारे बिहेवियर पैटर्न्स और स्किल्स जो कि करंटली और फ्यूचरिस्टिकली आपको जरूरत है इन द कमिंग ईयर्स, उनके बारे में आपको बताया जाएगा. एंड द स्पीकर फॉर टुडे इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मिस्टर Alok Chepurkar ji. I have the honor and the pleasure to introduce him to you. So Alok ji has widespread experience in financial service industry, of course. Besides that, he has a special interest in industry, academia, engagement, and CSR. He is a certified behavioral analyst. He is an OD practitioner and a qualified MBTI practitioner as well. He is also a professional certified coach from International Coach Federation. And Alok ji is on the boards and expert committees of several institutions, like he's member of Executive Committee of National Human Resource Development Network, chairman of Apex Advisory Committee, member of Governing Council of SNDT University, Mumbai, member Board of Governance of Symbiosis School of Banking and Finance, Pune, and whatnot. The list is long, so I am just going to share with you that he's also a recipient of many awards at the national and international level. He was honored with Rashtriya Samman Award, Most Influential HR Leader in Asia, IES Award for Creative HR Strategies, GNIMS's HR Professional of the Year, and ICFAE's Global Thought Leadership Award, to name a few. So it is our great honor and privilege, Alok ji, to have you here. And now we request you to please enlighten the young students with your vast knowledge and experience. The most eminent speaker, Mr. Alok Chepurkar ji. Over to you now. Thank you very much, madam, for a very generous introduction. Suddenly, I felt very important. My pleasure. And I think it's a great opportunity for me to come and speak to students. Talking to young students have always been my first preference. So if with your permission, my idea is not to just speak myself, because while I love to hear my own voice, but my idea is also to establish a communication with students. तो मुद्दे की बात यह है कि मैं बच्चों से संवाद साधना चाहता हूं, और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि मेरा कैसा करियर डेवलप हुआ है, क्योंकि जो आपके यहाँ के बच्चे हैं उनसे मेरा एक बहुत अलग सा नाता इसलिए भी है क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है और मेरा बैकग्राउंड मुझे लगभग एक जैसा नजर आता है. And that is because I also come from a middle class background. I also have the agriculture background. मेरे घर में भी खेती होती है. तो मुझे पता है कि आज एक व्यक्ति जो गांव से निकल के आता है और उसको बंबई जैसी बड़ी सिटी में एक सबसे महंगी रियल एस्टेट में बैठने का एक अपना तजुर्बा जब होता है, तो उसका एक अलग ही नजरिया होता है अपनी लाइफ के प्रति, क्योंकि उसको याद है कि बचपन में कैसे वो टाट पट्टियों पर बैठ के पढ़ा है और कैसे माँ बाप ने मेहनत करके अपनी जीवन की सारी पूंजी इन बच्चों के लिए लगा दी है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू टेक दिस कोर्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर इन देयर लाइव्स. ये एक ऐसा खूबसूरत मोड़ इनकी जिंदगी में है जहां से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जाना है और कितनी ऊंचाई पे जाना है. तो आप देखेंगे कि ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ. स्कूल लाइफ में आपको टीचर्स हमेशा कहते हैं करने के लिए, तो टेल एंड येल
मतलब कहते हैं और शायद चिल्लाते भी हैं कभी कभी स्टूडेंट। आजकल तो शायद स्कूलों में नहीं है, हमारे जमाने में तो पिटाई भी हो जाती थी। तो वो जो चीज है अब कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में अब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, और दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव अ वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि हर आदमी की आंख में एक ख्वाब होगा, एक सपना होगा कि मुझे ऐसा करना है। अगर आपके पास अभी कोई सपना नहीं है तो आई विल जस्ट कोट वन स्टेटमेंट, दैट विजन without action is merely a dream. Action without vision is passing the time, but vision with action can change the world. तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी आंखों में एक नजरिया है, एक सपना है, और आप उसकी तरफ काम करते हैं, तो ही आप अपने चारों तरफ के संसार को बदल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टाइम पास है। पर टाइम पास का भी एक अपना महत्व है। पर जब 40 साल की उम्र में हम ज्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सौगात देंगे, ये एक सवाल हमें पूछने की जरूरत है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है बिजनेस करें, पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन करें, somebody would look for a job, somebody would look to do some partnership। तमाम ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध है, बट what is that you want to do will decide how you have to, what course of action you have to do। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और इस कहानी से शायद देखते हैं हमें कुछ सीख मिलती है नहीं मिलती है। तो देयर वॉज अ बलून सेलर अराउंड अ बीच। समुद्र के किनारे एक आदमी था जो बलून बेच रहा था। तो बलून या गुब्बारे जिनको हम कहते हैं, वो अलग अलग रंग के थे, और वो जो अलग अलग गुब्बारे थे, कोई लाल था, कोई पीला था, कोई नीला था, कोई हरा था। तो एक बच्चा आया, उसको भी गुब्बारा खरीदना था। उसने पूछा कि अंकल ये बताइए मुझे कि क्या है काला वाला गुब्बारा भी उतना ही ऊंचा जाएगा जितना लाल वाला जाता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज वर प्लेइंग विद रेड कलर बलून। तो दुकानदार ने जो जवाब दिया कि बेटा ये सवाल इस बात का नहीं कि कौन सा कलर है, क्योंकि गुब्बारा कितना ऊंचा जाएगा ये कलर पर डिपेंड नहीं करता है, पर उसके अंदर ही गैस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही हम लोग अपने काम में क्या हासिल करेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लोग के अंदर क्या है, और जो हमारे अंदर है वो हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। तो हमारे अंदर क्या है? प्रयास है, सिंसियरिटी है, हार्ड वर्क करना है और फोकस रखना है। क्योंकि आप में से कई लोग सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कुछ लोग बैंक में जाएंगे, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है अपना खुद का बिजनेस डालें, चाहे वो डेयरी बिजनेस हो, एग्रीकल्चर बिजनेस हो, कुछ लोग हो सकता है राजनीति में जाए। Why it is extremely important today to make our best effort? आज हमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रयास करने की जरूरत क्यों है? तो हम देखेंगे कि वी आर लिविंग इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। जब हम आपस में ये देखते हैं कि आज एक बड़ा ही कठिन समय निकल रहा है, तो क्या हमें हमारे कुछ करने से फायदा होगा या ना होगा? तो इसके लिए इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। सुबह होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। तो हमारे ये जो आज कोविड का टाइम चल रहा है, मेरे ख्याल से अब सुबह होने वाली है। और आज भारत के चारों तरफ भारत को कई देशों से खतरा है। तो और भारत को आज एक ग्लोबल कंपटीशन में जाना है। तो इस कंपटीशन को जीतना और हमारी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना ही अगर हमारा लक्ष्य है, तो इस देश की असली सेवा वही है कि हम लोग जो भी काम करें उसको पूरे तन मन से करें। क्योंकि अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तभी हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे और दुनिया के सारे देशों से मुकाबला कर पाएंगे। आने वाले लगभग 50 मिनटों में मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप ये मत कोशिश करिए कि मैं जो सब कुछ बता रहा हूं वो आप नोट करें, उसको फॉलो करें। नहीं, आप एक या दो चीज जो भी आपको अच्छी लगे इसमें से आप उसका पालन करें। और जैसे कहा गया है कि एक अच्छा मित्र होना ही पर्याप्त है जीवन में, इसी तरह एक या दो अच्छी चीजों का आप अनुकरण करेंगे, फॉलो अप करेंगे, यू विल सेल थ्रू सक्सेसफुली, एंड दैट्स द ट्रू सर्विस टू द नेशन। So, balloon story tells us about one fact, that
एटीट्यूड डिसाइड्स द एल्टीट्यूड। अब सवाल ये है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नजरिया क्या है। अब देखेंगे आप पढ़ने की एक प्रक्रिया देखेंगे तो कुछ लोग जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, कुछ पलंग पे लेट के पढ़ते हैं, कुछ कुर्सी टेबल पे पढ़ते हैं, कुछ बड़े अनुशासन से पढ़ते हैं, कुछ कैजुअली पढ़ते हैं। तो जैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वैसा ही हमारा रिजल्ट होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम बबूल के पेड़ बोएंगे तो फिर आम कहाँ से लाएंगे। सिमिलरली व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू सॉ इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप आज कॉलेज में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप यहां जितने भी लोग हैं उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। कई लोग कहेंगे कि नहीं सर हमको जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 5-6 चीजें कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली है। और मेरे शायद 5-6 आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपको सडनली लगने लगेगा कि आपके पास क्या संपदा है। मैं संपत्ति नहीं कह रहा हूं, संपदा, एसेट्स क्या हैं आपके पास, आप कैसे एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जब मैं बताऊंगा आपको तो शायद आपको एहसास होगा कि अगर मैं इतना भाग्यशाली हूं तो क्यों ना मैं अपने परिवार, अपने देश, अपनी सिटी और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा प्रयास कर सकूं जिससे कि ये देश और यहाँ के रहने वाले लोगों को मैं सही मायनों में उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकूं। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। अगर मान लीजिए कि इस दुनिया की जनसंख्या 100 लोग हैं, हाइपोथेटिकली पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उसको हम 7.5 करोड़ के आसपास, 7.5 करोड़ जनसंख्या है, 130 7,500 करोड़ जो जनसंख्या है दुनिया की, उसको अगर हम 100 पे लेके आते हैं तो 100 में से 80 लोग गरीबी में जी रहे हैं। यानी इस दुनिया की 80% पॉपुलेशन इज लिविंग इन पॉवर्टी और 70% लोग अशिक्षित हैं। दैट मीन्स दे डोंट नो हाउ टू राइट, दे आर इलिटरेट। अब वैसे तो मैं कहता हूं अनपढ़ और अशिक्षित में 2 अंतर हैं। अनपढ़ कोई भी हो सकता है पर अशिक्षित वो होता है जो पढ़ा लिखा होकर भी दूसरी तरीके का काम करता है। तो 70% लोग इस देश में, इस दुनिया में अशिक्षित हैं, इलिटरेट हैं। दूसरी बात यह है कि 50 लोग, अगर 100 की जनसंख्या मतलब आधी जनसंख्या इस दुनिया की भूख और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। यानी उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता, विटामिन नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, 2 टाइम खाना नहीं मिलता, 1 टाइम भी नहीं मिलता। और 1% जनसंख्या हर रोज मर जाती है। यानी 1% पॉपुलेशन जो है हमारी मर जाती है। और उसके बाद सिर्फ 100 में से 1% यानी इस दुनिया के 1% से कम लोग कंप्यूटर ओन करते हैं। तो अगर आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कंप्यूटर ओन करते हैं और भगवान की दया से खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, आप लोग बीबीए कर रहे हैं मतलब पढ़े लिखे भी हैं, और अगर बीबीए की फीस दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ठीक है, माता पिता ने लोन लेके दिया होगा, पर पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन नहीं जी रहे हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि ये खुश नसीबी संसार में सिर्फ 5 या 7 लोगों को मिलती है। यानी 5 to 7% पीपल आर ब्लेस्ड टू हैव सच प्रिविलेज। तो एक जैसे अब आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है बड़ी बात नहीं है। तो मैं अब आपको दूसरा आर्ग्यूमेंट देता हूं क्यों आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है और आप क्यों सौभाग्यशाली हैं। तो अगर दूसरा हिसाब यह है कि इफ यू हैव मनी इन द बैंक और इन योर वॉलेट or you have few coins in purse, then you are among 8 privileged people. Then you are among 8 privileged people who have such facility. यानी 100 में से 8 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, बाकी 92 लोगों के पास पैसे नहीं हैं। आप ये कहेंगे तो इसमें सर कौन सी बड़ी बात है, पैसे तो हमारे माँ बाप ने दिए हैं। बिल्कुल ठीक, सही बात है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आप सौभाग्यशाली नहीं हैं तो मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं दैट इफ यू आर वेकिंग अप इन गुड हेल्थ, अगर आप एक अच्छी तबीयत और अच्छे स्वास्थ्य के साथ सुबह उठ रहे हैं तो आप दुनिया के उन 12.5 करोड़ लोगों में से हैं जिनकी तबीयत ठीक ठाक है। बिकॉज ये 12.5 करोड़ जो लोग हैं ये अभी स्वस्थ हैं, फुल्ली फिट हैं। तो आप उतने ब्लेस्ड हैं कि आप दुनिया की जो हमारे 130 करोड़ जनसंख्या भारत की है, ऐसे ही सारे दुनिया की मिला के कुछ
700 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उन 700 करोड़ में से कम डेढ़ या 2 करोड़ लोग हैं जो फुल्ली फिट हैं, जिनको कोई समस्या नहीं, ना डायबिटीज है, ना कुपोषण है। सो वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव दैट। अब इसके बाद भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली न माने, हो सकता है न माने, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी वॉर, आप देखिए सीरिया, लीबिया, इराक, ईरान किस तरह से युद्ध से ग्रसित देश हैं और कितनी तकलीफों में जी रहे हैं। बेलारूस, कजाकिस्तान, आप देखिए, नाम लीजिए इन देशों के और कितनी बुरी हालत है। अगर आपको कभी जेल नहीं हुई है, मैं ऐसी कामना करता हूं आप में से कोई जेल नहीं गए हैं या जेल में बंद नहीं है, या आप कभी आपको भूखा नहीं सोना पड़ा है, तो आप दुनिया के 700 करोड़ लोगों से ज्यादा बेटर हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दैट्स व्हाई आई फील वी ऑल आर लकी। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आप लकी नहीं हैं, तो अगर आपके पास सोने को जगह है, अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं और अगर आपके घर में फ्रिज है, तो आप इस दुनिया की 75% पॉपुलेशन से ज्यादा रिच हैं। सो आई थिंक दिस इज ट्रूली प्रिविलेज एंड गॉड्स गिफ्ट दैट वी आर living in the country called India, where most of us are really privileged to be out of this kind of troubles. अब चूंकि हम इस तरह की समस्याओं से दूर हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने कार्यों को इस तरह से करें कि हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखें। Otherwise, we all know that other countries are always eyeing to enter into our territory, and we, 130 million people, very strong people, are always going to try that we not only maintain our peace, tranquility, and good status, but also grow and become the leading supplier to the world. और भारत को जैसा हम चाहते हैं कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट द मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं ला रही हैं। तो ऐसा मुझे अगर आज एक भगवान अगर एक वरदान प्राप्त कर देता है, तो मैं तो चाहता हूं कि मुझे दोबारा कॉलेज जाने का मौका मिले, ताकि वो जो चीजें मैंने शायद कॉलेज में नहीं कर सका था, अब करना चाहूंगा। सो सम ऑफ द थिंग्स विच आई वांट टू लीव यू विथ, विच यू शुड कंसीडर डूइंग, वन इज दैट यू शुड फोकस। घबराने की जरूरत नहीं है, हमें शर्माने की जरूरत नहीं। तो मैं आपसे इतना कहता हूं, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, लक्ष्य पर साधो निशाना, हिम्मत हारना नहीं। तो आपको कुछ चीजें अगर आप करेंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और आपके जाने का सीधा मतलब है कि आप, आपका परिवार, आपके भाई, मित्र, सभी लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि एक आदमी कभी भी अकेला आगे नहीं जाता है। जब जाता है तो साथ में लोगों को लेके चलता है। सो सम ऑफ द थिंग्स वेयर यू कैन फोकस इज लिटिल बिट ऑफ नंबर स्किल्स। थोड़ा सा कक्षा 8 तक का गणित आना हर आदमी को जरूरी है, इससे आपके लिए बहुत आगे जाके अच्छा होगा। लिटिल बिट फोकस ऑन इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग, इफ रिक्वायर्ड टेक अ कोचिंग, but if you can improve, build good proficiency in English, it will be one of the big game winner for you, because lot of literature, lot of knowledge is there in English, so don't run away from English. मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, इसलिए आपको बिल्कुल इस बात का संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छा एकाधिकार इंग्लिश पर ला सकते हैं। It is said, scientifically भी ये कहा जाता है that if you know more than one language, your brain works better than somebody who only knows one language. So it's always good to know language. Then you should also, I think if I am the student again, I will focus on couple of things. जो मैं थोड़ी सी चीजें, जब मुझे बीबीए करने का अगर मौका मिलता तो मैं आज क्या डिफरेंटली करता, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं पंक्चुअलिटी पे ध्यान देना शुरू करूंगा। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि मैं राइट टाइम पे कॉलेज आऊंगा, राइट टाइम पे अपने लेक्चर में जाऊंगा। अगर मेरी मीटिंग किसी से फिक्स है तो मैं दूसरे के समय की इज्जत करूंगा। जब मैं दूसरे के समय की इज्जत करता हूं तो समय मेरी इज्जत करता है। और जब समय आपके साथ हो तो आप इस संसार में, आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दूसरी बात, छोटी छोटी हैबिट्स हैं। छोटी हैबिट्स कैसी हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज डन अ फेवर टू यू, ऑलवेज लर्न टू से थैंक यू। इफ पॉसिबल, learn to write, how to write email, learn to practice that.
सेंड थैंक यू नोट्स। अनदर थिंग कि आपको करियर में आगे क्या करना है, इस बात का अगर आपको चुनाव करना है तो बेस्ट वे इज ट्राई एंड डू सम ट्रेनिंग। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, मान लीजिए आप बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के बाद 15 दिन की छुट्टी आती है, कोशिश करिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 वीक या 3 वीक की इंटर्नशिप मिल जाए। या अगर आपको इंटर्नशिप मिलने में तकलीफ है, आप कोशिश करिए आप किसी प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करिए कि सर 15 दिन में आपके अंडर में काम करना चाहता हूं, मे बी ही माइट गिव यू सम स्मॉल प्रोजेक्ट, वर्क सिंसियरली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे क्या प्रोजेक्ट मिला था जिसने आज मेरा जीवन बदल दिया है। सो आई मेट वन जेंटलमैन इन माय कॉलेज एंड ही गेव मी अ प्रोजेक्ट। उस समय ज़ेरॉक्स मशीन नई नई आई थी, तो 2-3 कंपनियों की ज़ेरॉक्स मशीन थी। मुझे प्रोजेक्ट दिया उन्होंने कि आप सबसे बढ़िया ज़ेरॉक्स मशीन कौन सी होगी ये ढूंढ के लाइए। तो मैंने 4 दिन तक, उस समय कंप्यूटर नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो मैंने 4 दिन तक अध्ययन किया, अलग अलग डीलर से जाके मिला और ज़ेरॉक्स मशीन का एक मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया 6 पेज का। उसमें सारे ज़ेरॉक्स मशीन के फोटोज, उनकी क्वालिटीज, उनकी कैपेसिटी, उनकी प्राइस, उनकी साइज, कितना बड़ा टेबल चाहिए रखने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करती है, एक बार में कितनी फोटोकॉपी कर सकती है, पर मिनट कितने फोटोकॉपी करती है, किस किस साइज की फोटोकॉपी कर। सो आई डिड अ प्रोजेक्ट। My professor got very impressed and he was asked to do this report by somebody in a large manufacturing company. So he submitted that report as it is to that person. And that person liked that report so much that when campus happened, he came to that campus. And when he learned I was that boy, among other selected people, he selected me. और जब उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया तो मेरे को ऑफर मिल गया ग्वालियर जैसी, मैं आई बिलोंग टू ग्वालियर, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो उस समय मेरे को 1991 में मेरा पहले कैंपस प्लेसमेंट हो गया और वहां से फिर उन्होंने मुझे मेंटर किया और आज मैं ईश्वर की कृपा से और काफी मेहनत करके सब लोगों से, और मैंने काफी अच्छा ठीक ठाक काम किया और इसलिए मैं आज लोगों को पढ़ाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। तो मेरे दैनिक जीवन का कम से कम 30% समय मैं बच्चों से बात करने में ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर भारत के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, आप लोगों में बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत पोटेंशियल है, बस एक थोड़े से गाइडेंस की कमी कहीं रह जाती है। तो ये मेरे को एक अवसर मिला, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो एंड आई एम थैंकफुल टू मैडम त्रेहान एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट दे हैव अलाउड मी टू स्पीक टू यू। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए आप शायद आज न समझेंगे, जब शायद 40, 45, 50 साल के होंगे तब आप इस बात को समझेंगे कि युवा बच्चों को अपने अनुभव सिखाना सबसे सुखद एक अनुभव होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बातों से कुछ सीखेंगे। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको बहुत आगे ले जाएगी, एटिकेट्स का मतलब, या मैनर्स कह लीजिए, एटिकेट्स कह लीजिए, कि जैसे आपके सामने कोई बड़ा आता है, सीनियर आता है, तो क्या आप उठ के खड़े होते हैं या कि पैर पसार के कुर्सी पे बैठे रहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को मैं नहीं देख रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहे हैं आप लोग, सिर्फ आपके नाम दिख रहे हैं, पर आप इस समय क्या कर रहे हैं इसका अंदाज सिर्फ आपको होगा, क्योंकि यू आर, इंग्लिश में कहावत जो मेरा अपना तकिया कलाम है, यू आर व्हाट यू आर व्हेन नोबडी इज सीइंग यू। आपकी असलियत वो है जो आप व्यवहार करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता है। तो अगर आप कभी होटल में रुके हैं और कोई नहीं है रूम में, और अगर आप नहाने के टॉवेल से अपने जूते पोंछ रहे हैं, तो आप जरूर ये सवाल पूछिए कि क्या ये करना सही है और क्या ये मेरा असली रूप है। तो आपके असली रूप को ईश्वर भी शायद न पहचान पाए, आपके असली रूप को आप पहचानेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग बैठ के नोट पैड लेके मेरे बात को सुन रहे हो सकता है कुछ लोग बिस्तर पर लेटे लेटे सुन रहे हो सकता है कुछ लोग खाना खाते समय सुन रहे हो। तो आप जो कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या कर रहे हैं, और इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि अब आप लगभग 18 साल के होने जा रहे हैं। आज से आपका भविष्य आपके हाथों में है और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 में से 2 या 3 लोगों को ही कॉलेज जाने का सुख इस संसार में मिल पाता है। तो आपने निश्चित ही, अगर हम कर्म के सिद्धांत पे विश्वास करें, तो आप लोगों ने निश्चित ही पिछले जीवन में कुछ अच्छे काम किए होंगे कि आपको ऐसे माँ बाप मिले जो आपसे इख्तलाफ होने के बावजूद भी आपको आज
यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये पैसे शायद वो अपने बुढ़ापे के लिए भी रख सकते थे, पर उन्होंने एक चॉइस की, दे हैव मेड अ चॉइस टू फंड योर एजुकेशन, क्योंकि इसलिए नहीं कि उनकी ड्यूटी है, बट इसलिए कि आपका आने वाला भविष्य सुनहरा हो सके। तो इस अच्छाई का पुरस्कार आप कैसे देना चाहते हैं, वही आपका असली स्वरूप है। दैट इज द रियल यू, दैट इज द ट्रू यू आर। किसी ने पूछा इख्तलाफ का मतलब क्या है? इख्तलाफ का मतलब है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या अलग राय होना। हो सकता है माँ बाप से आपकी हर बात एक राय न होती हो, आपकी राय अलग होती हो, माँ बाप की राय अलग होती हो। तो मेरे कहने की मतलब यह है कि हजारों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी, 100 बार विचारों में भिन्नता होने के बावजूद वो कोई और खड़ा नहीं होगा। तो इस स्ट्रेंथ को पहचानिए, यही आपकी असली ब्लेसिंग है। तो अगर आप इतने भाग्यशाली हैं, इतने अच्छी ब्लेसिंग है आपकी, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी है, खाद अच्छी है, पानी अच्छी है, तो पेड़ में फल क्यों नहीं लगना चाहिए? तो क्या पेड़ों से ज्यादा हम ईमानदार नहीं हो सकते? क्या फसल से ज्यादा ईमानदार हम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। और हम इंसान हैं, हमारे पास वो पावर है जो हम विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बुरा समय आता है उसको आप एक अवसर समझिए। अ बैड टाइम, अ क्राइसिस इज गुड, बिकॉज क्राइसिस टेल्स यू व्हाट इज योर ट्रू कैपेबिलिटी इज। सो आई थिंक यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड टू बी इन द राइट टाइम। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं जिसपे शायद आप अगर उस पर विचार करें तो आपको शायद बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैंने अपने 40-50 साल के करियर में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैंने अपना करियर चालू किया था 1986 में। तो 1986 से लगभग 34 साल हो गए हैं मुझे। तो इन 34 सालों में मेरी जो लर्निंग रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अमूमन 8,000 बच्चों से हर साल संपर्क में आता हूं। 8,000 बच्चों से, तो आप लगा लीजिए अगर 20 साल भी हुआ तो मैं कम से कम 1,60,000 बच्चों से मिल चुका हूं आज तक। ये कोविड टाइम है, मैं आप लोगों से ई मीटिंग कर रहा हूं, अदरवाइज मैं लगभग 1,60,000 बच्चों से मिल चुका हूं। लिंक्डइन पे मेरे 16,000 कनेक्शंस हैं, और 16,000 में से 10,000 मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मैं, ये कोई मेरे लिए डेटा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो मेरी एक शोध है, एक रिसर्च है। सो आई एम टेलिंग यू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। और मेरा अनुभव गलत भी हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण सत्य कोई नहीं है, संपूर्ण सत्य वही है जो आपको लगे सत्य है। तो चलिए, इस बात में आपको मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं। कुछ स्किल्स जो हैं जो आपको शायद काम आएंगे, सम स्किल्स विच यू मस्ट प्रैक्टिस गोइंग फॉरवर्ड। पहली बात, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव है। आप जो कुछ भी सीखना चाहें, जस्ट स्पेंड 100 आवर्स ऑन लर्निंग, वेदर इट्स इंग्लिश लैंग्वेज, वेदर इट्स राइटिंग ईमेल्स, वेदर इट्स कंप्यूटर्स, whatever you want to do, just spend 100 hours and you will have reasonable proficiency in that subject. That is number one. Second thing is, a good behavior, good conduct will always give you 10x results. 10x मतलब 10 गुना ज्यादा। अगर आप अच्छे से व्यवहार करते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, बट आपके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी जो आपके प्रयासों को 10 गुना बढ़ा देती है। और एक सफलता आपको अगली 10 बार प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़ें। हो सकता है आप में से कुछ कहें कि सर मुझे तो आज तक सफलता नहीं मिली। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप यहाँ बैठे हैं, इस भाषण को सुन रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सफलता है। पर ठीक है, नहीं मिली तो ट्राई करिए, जरूर मिलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज लाइक बसेस। जो बस स्टॉप पे बस आती है, हर एक आदमी के सामने बस स्टॉप है, हर एक आदमी के पास बस आएगी। अब सवाल यह कि आप उस बस में चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर बस जरूर आएगी, कभी ना कभी आएगी, हर बार आएगी। तो किसी को 2 बसेस मिलती, किसी को 3 मिलती, किसी को 10 मिलती है, पर बस जरूर मिलती है। आपको उस बस को छोड़ना नहीं है। तो दैट इज समथिंग विच आई वांट टू टेल यू. So this is, we should always remember that finally God is kind. If some of us believe in God, you will always get opportunity, and most of the time people get multiple opportunities. It is up to you whether you make big out of it. Next is, मेरे हिसाब से एक और चीज हमें करना चाहिए सफल होने के लिए. How can we solve problems? Whether it belongs to
others problem, it becomes our problem. तो अगर सोसाइटी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनको स्टार्टअप करना है, तो वो एक अच्छा नजरिया हो सकता है जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं या अपना कोई ट्रेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी हुई? जब लोगों को लगा कि शायद लोग हेल्दी खाना चाहते हैं, बिना केमिकल के खाना चाहते हैं, तो आप देखिए आपके अभी नोएडा गाजियाबाद में कितने लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और 2000 और 2500 और 3000 रुपए किलो घी बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर दैट दिस इज समथिंग विच इज good for health. So people are willing to pay if you are willing to serve. तो ये हमको हमेशा याद रखना है। कुछ हैबिट्स हैं जो मैं आपको चाहता हूं, 2 बुक्स I would recommend you to read if you have not read already. One is You Can Win. You Can Win. It is also available in Hindi. You Can Win by Shiv Khera, and 7 Habits of Effective People by Stephen Covey. So you should look at that. On those books, read them. I will maybe touch a little bit. अब हमें कैंपस आ गए, हमें कैंपस में क्या करना है? देखिए, कैंपस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो शायद जीवन भर के लिए आपके साथी बनेंगे। मेरा ऐसा अनुभव है हजारों बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद कि स्कूल के मुकाबले कॉलेज के फ्रेंड्स ज्यादा लंबी दूरी तक जाते हैं। स्कूल के मुकाबले कॉलेज के दोस्त ज्यादा लंबी दूरी तक जाते हैं। तो अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, सभी लोग अच्छे हैं, उसकी अच्छाई देखिए और देखिए कि आप 1 और 1 2 की जगह 1 और 1 11 कैसे बन सकते हैं। किसी ने मुझसे अभी पूछा है, बुक रिपीट कीजिए, यू कैन विन, यू कैन विन बाय शिव खेरा, KHERA SHIV, शिव खेरा। एंड दूसरी बुक मैंने बोली है 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी। दोनों बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं। सो आई एम कमिंग बैक टू योर कैंपस लाइफ। हाउ कैन यू मेक मोस्ट? देखिए, आप 3 साल का समय दे रहे हैं, फीस कुछ नहीं है इसके सामने, क्योंकि आप अपने जीवन के 17-18 साल से 21 साल तक की एज, जो 3 सुनहरे साल है इस कैंपस में आप बिताएंगे। तो मुझे क्या लगता है, मैं अपने बच्चे से हमेशा एक सवाल पूछता था, जब भी वो थोड़ा सा इधर उधर भटकता था, तो मैं बोलता था कि आप 10 रुपए लेके जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार आपकी तारीफ करके आपको 3 रुपए का सामान देके वापस भेज देता है, कैसा लगा आपको ये सौदा? तो उसने कहा मैं तो 7 रुपए लॉस हो गया। तो मैंने कहा इसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 रुपए देके 10 रुपए का सामान खरीदूं। आप अगले 3 साल यानी आपके 10 रुपए हैं, आप समय दे रहे हैं, और ये समय आप इंस्टीट्यूट को नहीं दे रहे हैं, ये समय आप अपने आप को दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट आपको इंप्रूव करने का एक टूल है। एवरीथिंग इज नॉट विथ I will write the book's name in the chat box when question answer session goes, so that everybody benefits. But still, You Can Win and 7 Habits of Effective People. You can Google it and you will get the name and the author. तो सवाल ये है कि सबसे पहली बात हमें कैंपस का फायदा उठाना है। तो कैंपस का फायदा कैसे उठाएंगे? पंक्चुअलिटी के साथ। टीचर्स को सुनिए, क्योंकि 3 साल बाद ये टीचर्स अब आपके जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। तो टीचर्स को सुनिए, समझिए वो क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। Why is he saying what he is saying? So listen to your teacher. Teacher is not your enemy. He may give you less score or more score, doesn't matter. Score is immaterial. What is material is what have you learned in these 3 years. That is going to go with you, not your mark sheet alone. Your learnings are going to go with you. तो पहली बात ये है, अच्छे दोस्त बनाइए, टीचर्स की सुनिए, use the library whether in e-format or physical format, learn to work with others. बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी नियामत अगर हम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। और जो भी सफल लोग हैं वो टीम बनाना जानते हैं, फोर्ज अलायंस, यानी लोगों के साथ कोलैबोरेट करके नेटवर्क करना जानते हैं, क्योंकि कोई भी सफल आदमी बिना नेटवर्किंग के आगे नहीं बढ़ सकता। सो बिल्ड योर नेटवर्क। अगर आपके कॉलेज में ये पॉसिबिलिटी है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जनरल नॉलेज क्विज में भाग ले सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं, होन योर स्किल्स, बिकॉज अच्छी बातें बोलते आना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। विचार बहुतों के पास अच्छे होते हैं पर बेचारे अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं। कोशिश करिए, ट्राई टू बी अ रीजनेबली गुड स्पीकर। आई एम श्योर इंस्टीट्यूशन विल स्पेंड सम टाइम ऑन योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स।
क्या आप 10 लोगों के सामने बिना रुके बोल सकते हैं? ये एक स्किल है जो आपको काफी सीखना जरूरी है। अब यहां से अगला सवाल ये आता है कि ये कैंपस आपको और क्या दे सकता है? ये कैंपस आपको एक और कैंपस दे सकता है। वो कौन सा कैंपस हो सकता है? वो आईआईएम के कैंपस हो सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी का कैंपस हो सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी आईपीएस का हो सकता है, या आपकी राज्य पुलिस सर्विस सेवाएं, सिविल सेवाएं, बैंक का कैंपस, या फिर किसी और अच्छा कैंपस, या किसी बड़ी कंपनी गूगल याहू का कैंपस हो सकता है, किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे क्रॉम्पटन, वेदांता, कैडबरीज जैसी कंपनियों का कैंपस हो सकता है। वो आपको कौन सा कैंपस मिलेगा, ये निर्णय आप यहाँ क्या करने वाले हैं अगले 3 साल में, वो आपको डिसाइड करेगा कि वो कैंपस कौन सा होगा जहां आप जाएंगे। तो ये कैंपस आपके उस कैंपस की नींव रखेगा। अब अगले 3 सालों में आप क्या करते हैं, ये निर्णय इस बात का फाउंडेशन करेगा, इस बात का आधार रखेगा, इस बात की नींव रखेगा that what are you going to do, let us say if you become 20-year-old or 21-year-old, और ईश्वर ने आपको नियामत बख्शी, अच्छी स्वास्थ्य बख्शा, और जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, अगर हम ईमान के चले कि 90 साल की हमारी उम्र होने वाली है, तो ये 3 साल ये बताएंगे कि अगले 70 साल आप कैसे जिएंगे। तो you have to invest for next 70 years in these 3 years, always remember. So put that amount of seriousness, that amount of sincerity. अगर आप एक साल को आप कितने पैसों में बदलना चाहते हैं, आप पाएंगे तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का आपका ये स्टेक है। और अगर आपका करोड़ों रुपए का बिजनेस है और आपको 3 साल देना है, तो आप कैसे देंगे, इस बात पे निर्णय होगा। तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक और चीज सीखें, वो है यहाँ अनुशासन, डिसिप्लिन। ये कैंपस आपका एक लेबोरेटरी है या एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में अच्छे प्रयोग कीजिए, सकारात्मक मन से प्रयोग कीजिए, और अगर आप अपने सकारात्मक मन से अच्छे प्रयोग करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, आपको पास अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे और आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अच्छे प्रयोग और सच्चे प्रयोग आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। तो इस कैंपस में आप जरूर इस चीज को देखिए। हम लोग एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां 130 करोड़ जनसंख्या है। अब ये 130 करोड़ जनसंख्या जो है दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, और हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू हैव नॉट वन बट टू मोबाइल, 2 वाला 3, जिसके पास 2 मोबाइल है वो आईपैड लेके घूम रहा है, आईपैड के साथ लैपटॉप भी है, घर में फ्लैट टीवी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो यहाँ की जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी, वो एम्बिशियस है, शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करने चाहते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में अगर आप 3 साल और अगले उसके बाद के 3 साल और अच्छे से इन्वेस्ट करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए। तो मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूं। मैडम, मेरे पास कितना समय है? Yeah, sir, you can carry on for like 10-15 minutes. ओके, फाइन। Yeah. तो कैंपस का एक और फायदा ये है आपको कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जाइए, देखिए दूसरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जाइए बर्गर किंग में जाइए, जाइए पिज्जा हट में जाइए, जाइए किसी बैंक में करिए इंटर्नशिप, देखिए कैसे बैंक काम करती है, कैसे बर्गर किंग पैसे बनाता है। किसी होटल में जाइए, कोई छोटा काम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ 2 दिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे जब भी समय मिलता है मैं तो पहुंच जाता हूं अपने खेती पे, मुझे कोई शर्म नहीं है। तो मेरा कहना यह है आपसे कि कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, आप जरूर कीजिए। और जब आप वो काम करेंगे और 8 घंटे की मेहनत करेंगे, उसके बाद जो आपके विचार आते हैं, वो असली हीरे और सोना है आपकी, वो असली जायदाद है। और उन विचारों और उन भावनाओं को संभाल के रखिए, रिटेन देम, बिकॉज दैट इज व्हाट कनेक्ट्स यू विद द ग्राउंड। हवा में उड़ने के लिए बहुत लोग हैं, जमीन से जुड़ने के लिए कम लोग हैं, और जमीन से जुड़ने वाले लोगों की हमेशा हमेशा कीमत रहेगी। दूसरी बात यह है कि कैंपस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर बिगर एंड बेटर फ्यूचर, because if we have a bigger and better future, certainly this country is going to have bigger and better future. Always think in that direction. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कुमार सानू का नाम आपने शायद सुना होगा, ही यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस सिंगर। तो एक पिक्चर आई थी 1942 लव स्टोरी, उस पिक्चर का गाना था। उस गाना गाने के लिए वो जब पहुंचे
तो आरडी बर्मन ने उन्हें वापस भेज दिया, जबकि सारा सेट रेडी था। 2 दिन पहुंचे, दोनों दिन उनको वहां से उन्होंने लगभग भगा ही दिया। तीसरे दिन जब कुमार सानू पहुंचे तो आरडी बर्मन ने कहा कि ठीक है, आप आइए, गाना गाइए। तो बाद में उन्होंने पूछा, सर मैं 2 दिन से आ रहा था, सब सेट रेडी था, तो आपने मुझे गाना क्यों नहीं गाने दिया? तो उन्होंने ये कहा कि जो गाना आपको गाना था, उस गाने में जो फीलिंग है और जो कपड़े आप पहन के आए थे, दोनों में कोई मेल नहीं था। आप जीन्स पहन के आए थे, आप टी शर्ट पहन के आए थे, और ये एक इमोशनल सॉन्ग था। जिस दिन आप पैंट शर्ट पहन के आए, उस दिन मैंने आपसे गाना गवाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी प्रेजेंस, जैसे मान लीजिए मैं कोट पहन के बैठा हूं, अभी हो सकता है मैं घर में हूं, मैं टी शर्ट भी पहन के बैठ सकता था, पर जब आप कोट पहन के बैठते हैं या आप प्रॉपर ड्रेस करके जाते हैं, तो आप एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन देते हैं। तो आपका एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, एक वर्ड लिख लें चाहे आप, तो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव, PRESENCE, इसको गूगल करिए, तब आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि आप कैसे ग्रूम करते हैं, डेली शेव करिए, हेयर प्रॉपरली कट होना चाहिए, आपके कपड़े ठीक साफ धुले हुए होना चाहिए, साफ होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत 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 ऊंचाई पे ले जाएंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोग बड़ी समस्याओं की वजह से नहीं हारते, लोग छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से हारते हैं, क्योंकि हम पहले 30 सेकंड में इंप्रेशन बनाते हैं और अगले 3 घंटे उस इंप्रेशन को वैलिडेट करते रहते हैं कि हमने वो इंप्रेशन सही बनाया है, गलत करा है। तो आपके पास 30 सेकंड है अपने आप को कहने के लिए, आपने अभी मुंह भी नहीं खोला होगा शायद। तो ये चीजें हैं जो कैंपस में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चीजें हैं। दूसरा, हमेशा सुनने की क्षमता डेवलप कीजिए, क्योंकि एक आदमी 1 मिनट में 250 के आसपास शब्द बोलता है, और आप 500 शब्द सुन सकते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप वो बोलते हैं जो आपको पता है, और जब आप सुनते हैं तो आप वो सुनते हैं जो आपको नहीं पता। तो विच इज बेटर? अगर आपको बोलने का इतना शौक है, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी रोज रिकॉर्डिंग करिए, क्योंकि वो तो आपको पता है। पर दूसरा आदमी जब बोल रहा है, जब आप दूसरे की बात सुनने की कोशिश करते हैं, तो आपको 2 नई चीजें पता चलती हैं। और इसीलिए बुद्धिमान लोग जो हैं वो सुनने में ज्यादा विश्वास रखते हैं बोलने के मुकाबले। आज मुझे तो बोलने का ही काम है, अन्यथा मैं जरूर सुनने का चॉइस रखता। तीसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि नेटवर्किंग करना सीखिए, लोगों से मिलना जुलना सीखिए, नए कनेक्शन बनाइए, और देखिए कि क्या आप हर आदमी से सीख सकते हैं, क्योंकि हर आदमी एक एनर्जी है, उससे आप सीखने की कोशिश करिए। क्या वो अच्छा करता है, क्या मैं अच्छा कर सकता हूं, अपने आप को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और उस पर बनिए। क्योंकि मैं आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, आप में से हर एक के पास, मैंने बहुत उधम करने वाले बदमाश बच्चे भी देखे, मैंने कई लोगों को देखा जिनकी स्मोकिंग शायद 1 पैकेट रोज पीते थे, पर उन्होंने छोड़ दिया किसी घटना के बाद। तो मेरा कहना यह है कि हर चीज को गलत करके देखने की जरूरत नहीं, दूसरों के अनुभव से भी सीखिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने अनुभव में कॉस्ट भी जाएगी, हेल्थ भी जाएगी। तो ये सारी चीजें, अच्छी हैबिट करिए, अच्छे बिहेवियर करिए, और शायद हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और हमें अच्छा इसलिए करना है, इसलिए नहीं करना है कि मुझे बहुत पैसे कमाने। देखिए, पैसे तो कमाए जाएंगे या नहीं कमाए जाएंगे मुझे नहीं मालूम। द क्वेश्चन इज, इंग्लिश में मैं पूछता हूं लोगों से, डू यू वांट टू बी रिच और यू वांट टू बी वेल्दी? Rich is somebody who has money, but wealthy is somebody who has the attitude. So you have to decide whether you want to be wealthy. क्योंकि कुछ लोग हैं, जैसे बिल गेट्स देखिए, वॉरेन बफेट देखिए, जिनके पास अकूत संपत्ति है, पर इन लोगों ने अपनी 90% संपत्ति आज दान कर दी है। हमारे लिए शायद हंसी हो सकती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सीमा के बाद पैसे नहीं, संबंध काउंट करते हैं। पैसे जरूर कमाइए, अच्छे से कमाइए, और उनको सही जगह उपयोग कीजिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, परंतु अपने आप में जरूर इन्वेस्ट करिए, और हमेशा कोशिश करिए कि कुछ न कुछ हम लर्न कर सकें। तो यहाँ पे मैं एक विराम लेना चाहता हूं आज, और क्वेश्चन आंसर की तरफ मुड़ेंगे। तो मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि मंजिल तो ढूंढ ही लेंगे भटक कर ही सही, मंजिल तो ढूंढ ही लेंगे भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो जरूर निकलिए, अच्छी हैबिट करिए,
बहुत अच्छे से कैंपस एंजॉय की है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी है। इस देश को आपकी बहुत सख्त जरूरत है, इस समाज को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। और मैं चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इंस्टीट्यूट के गाइडेंस में आप लोग जरूर बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। और बहुत संभावनाएं हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत अच्छा समय है। और मैं आप सभी को बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर ने कभी चाहा तो मैं जरूर कैंपस आऊंगा, तब आपसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अपने इस डिलीवरी को, अपने भाषण को एक पूर्ण विराम देता हूं। एंड ओवर टू मैडम त्रिहान फॉर मिस्टर साजिद खान, डॉक्टर खान। Thank you very much, sir, for your outstanding, motivational speech. Dear students, now it's your time to put your question before honorable guest of honor, honorable guest of speaker. Please put your question before him. If you want to put your question, you can put your question in the chat box. Sir will answer your question. Otherwise, you can directly ask the question to Alok sir. I am unmuting you all. Allow all the participants to unmute yourself if you want. If you have any question, then you can please put the question before Honorable Alok ji. Sir, one question from Dhruv. What is the meaning of इख्तलाफ? मैंने बता दिया सर, इख्तलाफ का मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राय की अलग होना। जैसे मेरा और आपका राय अलग हो सकता है किसी मैटर में। One question is a very unusual question which I am saying now. How many practices makes a man perfect? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 7 बार किसी चीज को करेंगे तो आप रीजनेबल प्रोफिशिएंसी गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी आदत चेंज करना है या नई आदत डालना है, जैसे आप कहिए मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप 7 दिन लगातार मेडिटेशन कीजिए। आप 8वें दिन नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम ही आपको कंपेल करेगा कि आप करें। आप अगर अपनी नहीं सुनेंगे तो दुनिया में किसी की नहीं सुनेंगे। आप अपनी आवाज पहचानना सीखो, अपने दिल की आवाज सुनना सीखिए। आपका दिल कभी आपको गलत सलाह नहीं देगा। सवाल यह है कि आप अपने संपर्क में आ पाते हैं या नहीं आ पाते, ये बस आपकी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल से सब समझदार लोग हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे लोग हैं, तो जरूर अपने दिल की आवाज को समझने की कोशिश तो करेंगे। One more question, sir. This is a very personal question for you. Sir, please tell us about your journey to being an HR, professional. देखिए, मेरी जर्नी तो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। मेरा स्कूल चालू हुआ, मैं बड़े ब्रीफ में बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज शायद समय नहीं, किसी और दिन। तो मेरा स्कूलिंग चालू हुआ जगदलपुर करके एक जगह है जो बहुत नक्सली ड्रिवन एरिया है बस्तर में, जहाँ पे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। मेरे पिताजी वहाँ डिविजनल अकाउंटेंट थे। शायद स्कूल भी नहीं था वहाँ, स्कूल में बिल्डिंग नहीं थी, हम लोग पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि आदिवासी एरिया था पूरा। फिर मैं स्कूल से होते हुए अपने कॉलेज में आया। कॉलेज में जैसे आप लोग आज कैंपस में खड़े, मेरे सामने भी एक वो दिन था। तो मैंने कॉमर्स चुना, और उस समय कॉमर्स चुनना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता था, क्योंकि लोग कहते थे जिसके पास काम नहीं हो बीकॉम है। बीकॉम और बेकाम एक कहा जाता था। और जरूर मेरे लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं इंजीनियर और डॉक्टर बनूंगा, तो शायद अच्छा हुआ मैंने वो फील्ड लिया। तो मैंने नहीं तो कई पुल गिरते या कई मरीजों को तकलीफ होती। तो मैंने कॉमर्स लिया, पर मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि कॉमर्स सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। वहां पे मुझे एक सर मिले मेरे, जिन्होंने शायद मेरे जीवन के परिवर्तन में बड़ा योगदान दिया। तो वहां से मैंने एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, बाय द वे स्कूल तक मैं एनसीसी में बहुत एक्टिव था, तो नेशनल सर्विस स्कीम का कैंप्स लगाना शुरू किए। Dr. Sajid, Alok ji is not audible. Sir, you are not audible. No. Okay, I have unmuted again. Yeah, now he's हाँ, yeah. तो फिर कॉलेज में मैं कॉलेज में Do you have any? Yes, Himanshu, please raise your question. Your story sounds inspiration. What? Tell your question. Inspiration. Can I speak? No. Do you have any Your question? story sounds
Yes. Experience. Your story is very interesting and he is very impressed. What you want to say? So can I continue? Yeah, please, sir. सो मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में मुझे एक प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझे नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, जो कि युवाओं का सबसे बड़ा संगठन है, उसके कैंप लगाए मैंने। फिर नक्सली एरिया था वारंगल में, आंध्र प्रदेश में, महबूबाबाद करके, जहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे गढ़चिरौली महाराष्ट्र है, वहां पे मैंने नेशनल सर्विस कैंप लगाए। फिर मैं डॉक्टर सुब्बा राव के संपर्क में आया। डॉक्टर सुब्बा राव जो है डाकुओं को सरेंडर कराने का काम करते थे, में आया, बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे। तो इस तरह से करते हुए मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मैंने थोड़ा कोशिश की, शायद मैं इंडिया टुडे के लिए सिलेक्ट हुआ, पत्रकारिता के लिए। पर मेरे पिताजी की कि मैं एमबीए करूं। जैसे कि एक पिता पुत्र के बीच में थोड़ा संवाद होता है, वो संवाद मेरे घर में भी हुआ। पिताजी से मेरे विचार विभिन्न थे, पर संस्कारों ने शायद मेरे को पिता की बात मानने के लिए मजबूर किया। Alok ji, please, Alok ji, your voice is not. No, I think I have been muted by a system again. Anyway, doesn't matter. तो कहाँ तक आपने सुनाई दिया मेरी बात? It was right over. Last one question, sir. The significance of SWOT analysis in business. See, SWOT analysis is what? Strength, weakness, opportunity, and threat. Okay? It is true for business, it is true for nation, it is true for society, so as it is true for individual also. But SWOT analysis तो आप खुद आपको पता है ना, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। आपको Okay. कोई नहीं बता सकता। आप खुद ही अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ जानिए, या कोई कोच या कोई टीचर या लोगों से फीडबैक लीजिए। कोई शर्म नहीं करना है फीडबैक लेने में। कुछ 2-3-4 ट्रस्टेड लोगों से, वो आपको अपने आप पता चल जाएगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आपका मन आपसे कभी गलत नहीं बोलेगा। So thank you so very much, sir. I take this opportunity to thank you, our venerable guest, Mr. Alok ji, for sparing his valuable time for motivating and interacting with our students. Now I request Dean Madam to conclude the session with her valuable remarks. Thank you very much, Alok ji, and my dear students. You've had the opportunity to hear out Alok ji, and thank you very much, sir, for sparing your valuable time. और आपने इतना down to earth बच्चों को, उसके लिए I think all of us are very grateful. And yes, it is very, very right that we are all lucky that we are able to actually hear out this session. And all the students, I congratulate you once again for this opportunity to have joined SDIET. You are among the lucky people in the country, I must say. Like Alok ji has reminded all of us, we have so many blessings, and we must be always counting those blessings and feel grateful to the Almighty, to the country, for being in this kind of a spot. Having said that, हमको अपनी ऊंचाइयों को तक पहुंचना है। हमारे सभी के अंदर एक अभिप्सा है, एक एस्पिरेशन है। There is fire in the belly in all my students. I know that. And again, Alok ji has really enthused you. It is not the color of the balloon which matters. It is what is inside the balloon which determines the height it would take. So students, I want to summarize today's session with lots of gems, which Alok ji has, of course, told us. He's asked you to combine your vision with action. यानी इन दोनों का जब अच्छा सम्मिलन होता है तभी बात बनती है। तो आपकी जो भी संपदाएं हैं, जो आपकी एसेट्स हैं, आप उनका भरपूर फायदा उठाइए। SDIET, along all my staff, all my faculty members, we are committed to ensure that you become the best possible versions of yourself. We have organized this orientation cum induction to give you a glimpse of what SDIET and the facilitation here stands for. And I'm sure that you are taking full advantage of all these sessions.
and you are fully engaged. The next session, of course, would be the activity class this Friday, October 30th. So once again, I wish you all the very best. Thank you, Alok ji. Thank you also my teammates, Dr. Sajid, Mr. Mohit, Madam Renu, and all the faculty members and the staff who have made this orientation possible. And once again, thanks all Alok ji from the bottom of my heart. And students, I hope you enjoyed yourself and you keep learning.